Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Manita. So as you guys already can tell that this video is all about the Q&A session I'm doing for the very first time. So a few days ago I posted a story on my Instagram asking people to ask me anything that they want, and I will literally gonna reply to all of them in a very realistic and a raw manner. And if you guys want to know about me, my life, my personality and all about me, watch this video till the end because I promise you this is really gonna be a fun. Also, if you're new to this channel, make sure to subscribe my channel because we are actually growing like a little family together. Now, without any further ado, let's get started. So guys, I have received some bunch of questions. There were so many, but I'm going to reply to those which are in repetitions. Of course, don't you guys worry, मैंने सभी तरीके के questions cover किए हैं तो आपको एक broader idea तो मिल ही जाएगा. So the first question is here. अपनी class 10th and 12th के percentage बताओ जी. मतलब वीडियो स्टार्ट होते ही परसेंटेज पूछने लग जाओ मेरे. मेरे 10th में आए थे 94.8% एंड मेरे 12th में आए थे 93.2. मेरी 12th में जो स्ट्रीम थी वो थी कॉमर्स विद मैथ्स, लाइक कॉमर्स के सारे सब्जेक्ट्स, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज अलॉन्ग विद मैथ्स, एंड आई ऑल्सो हैव इंग्लिश. एंड 10th के तो नॉर्मल जो सब्जेक्ट्स होते थे वो थे. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर. लखनऊ कब आओगी, बहुत साल हो गए मिले हुए. ओके, मैं अभी रिसेंटली ही लखनऊ आई थी, आई गेस इन द मंथ ऑफ दिसंबर, एंड अब मैं शायद जून में आऊंगी. एज सुन एज माई एंड सेमेस्टर गेट्स ओवर आई विल बी देयर इन लखनऊ वंस अगेन. तो हम लोग ऑफ कोर्स मिल सकते हैं वहाँ पे. ओके, नेक्स्ट, टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर कंटेंट क्रिएशन जर्नी टिल नाउ. Okay, so as you guys already know about me, but still I'm gonna answer this question. So my name is Manita Singh. I'm 19 years old and this year I'm gonna be 20, of course. I'm from Lucknow, but I'm currently studying in Greater Noida. And talking about content creation journey, so this year I've decided to do something really different. I wanted to do something that actually makes me feel happy. मैंने content creation journey के बारे में कभी इतना ज़्यादा सोचा नहीं था, but once my sister told me that you should give a try to this content creation, मेरे को तब थोड़ा सा self doubt था उस टाइम पे कि I don't think so कि मैं इस चीज़ को इतना अच्छे से कर पाऊंगी. But she encouraged me a lot and here I am now taking this content creation as a journey and as a part of my life now. And talking about this, how has been the journey till now? अच्छी जा रही है. To be very honest, I am so grateful to everything that happened to me till now because I know the struggle and the courage it takes for somebody to start doing something that they wanted to do for a really long time. Obviously, क्योंकि हम लोग अपने कैरियर में अपनी बाकी चीज़ों में इतना बिजी हो जाते हैं कि sometimes we left what we really enjoy loving before. ऐसे मेरे साथ भी था कि जब मैं छोटी थी तो I used to make TikTok, of course. Oh God, I used to make TikTok and I was so much active on these kind of things, whether it's acting or singing or dancing, whatever. And मेरे स्कूल के फ्रेंड्स को भी याद रहेगा कि हाँ भाई मैं ये सब करती थी, जो कि आज थोड़ा सा एम्बैरेसिंग होगा कि अगर मुझे कोई मेरी टिकटॉक वीडियोस दिखाने लग जाए, ऑफ कोर्स तो वो तो एम्बैरेसिंग है, बट हाँ मैं करती थी एंड आई हैव ऑलवेज बीन देयर इन दिस काइंड ऑफ थिंग्स. एक तो ये कि ये मेरा पैशन था ऑफ शोइंग माई सेल्फ, माई लाइफ टू द पीपल एंड आई लव टू कैप्चर दीज मोमेंट्स अ लॉट. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं अभी इसमें ये भी नहीं देख रही हूँ कि कब बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल जाएगी, कब बहुत ज़्यादा डाउनफॉल आ सकता है. नहीं, आई एम टेकिंग थिंग्स वेरी लाइटली कि मैं अपने एंजॉय के लिए कर रही हूँ, मुझे खुशी मिल रही है, मैं अपने आप को बिजी रख पा रही हूँ एंड मेरा टाइम अच्छी जगह यूटिलाइज हो रहा है. सो दैट्स इट. नेक्स्ट क्वेश्चन. दीदी लखनऊ कब आ रही हो, आपकी हंसी बहुत मिस कर रही हूँ. मैं भी यार, तुम सबको इतना ज़्यादा मिस कर रही हूँ. लिटरल मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब मैं लखनऊ वापस जाती हूँ और वहाँ पे अपने दोस्तों से मिलती हूँ और दोस्तों की बहनों से भी मिलती हूँ. सो या, इट मेक्स मी रियली हैप्पी. आई विल बी कमिंग टू लखनऊ सून, ऑफ कोर्स. जून में ही हम आ रहे हैं. सून है ये, बट ठीक है यार, हो जाएगा. एंड मेरी हंसी बहुत मिस कर रही है. मुझे पता है कुछ की हंसी ऐसी होती है ना कि जिसकी हंसी सुन के ही तुम्हें हंसी आ जाए. तो मेरे पास भी ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं एंड आई गेस मेरी भी हंसी कुछ ऐसी ही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. दी कॉलेज लाइफ फन होती होगी ना, मैं भी जाने वाली हूँ, सांप जैसे दोस्तों से बचने की टिप्स प्लीज. अरे यार, सांप जैसे दोस्त बोल दिया है. तो देखो, कॉलेज लाइफ फन होती है, नो डाउट बहुत फन होती है, एंड फन से भी ज्यादा ना बहुत एंटरटेनिंग होती है. एंटरटेनिंग इन द सेंस कि तुम्हारी लड़ाइयाँ भी हो रही हैं, तुम्हारी मस्ती भी नहीं रुक रही है, तुम सब कुछ कर रहे हो. यू आर नॉट जस्ट एंजॉइंग द मोमेंट्स बट ऑल्सो यू आर क्राइंग एट द सेम टाइम विद द सेम काइंड ऑफ फ्रेंड्स. एंड द थिंग इज ना कि
कॉलेज लाइफ में आते ही यू वुड स्टार्ट रियलाइजिंग कि भाई फर्स्ट ईयर में जो सब लोग बोलते हैं, ऑफ कोर्स फर्स्ट ईयर में बहुत बड़ा ग्रुप होगा, फिर छोटा होगा, फिर उससे भी छोटा हो जाएगा, वैसा ही होता है। बट मैं सांप जैसे दोस्तों के लिए क्या ही बताऊं, क्योंकि मेरे लाइफ में अभी तक इतने ज़्यादा सांप जैसे दोस्त आए नहीं हैं, बिकॉज आई हैव माई रीज़न फॉर दिस। जब मैं कॉलेज में आई थी आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। मैं सिंगल सीटर रूम में रह रही हूँ फ्रॉम द वेरी फर्स्ट ईयर ऑफ माई कॉलेज। मेरे जो कॉन्टैक्ट्स थे स्पेशली इन हॉस्टल वो बहुत ही कम थे। लाइक आई हैड ओनली 1 to 2 फ्रेंड्स दैट आई नो पर्सनली, बस मेरा कॉन्टैक्ट वहीं पे रहता था। तो मैं बहुत ज़्यादा सोशलाइज करी नहीं थी कॉलेज में, ना मैं बहुत ज़्यादा इंगेजिंग थी फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। इसीलिए शायद मेरा बहुत बड़े बड़े ग्रुप सर्कल्स नहीं थे कि जिसमें मेरे खूब बड़े ग्रुप सर्कल्स हो फिर वो थोड़े थोड़े में टूट रहे हो। नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ ही नहीं। लाइक आई हैव लिटरली मेड अ बाउंड्री अराउंड मी कि हाँ भाई, दीज सम लिटिल पीपल विल बी द पार्ट ऑफ माई लाइफ टिल द कॉलेज लाइफ, ठीक है। तो ऐसा सीन था मेरा, टच वुड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ टू दैट वन डिसीजन कि हाँ मुझे अपने लाइफ में लिमिटेड लोग रखने हैं बट अच्छे रखने हैं। क्योंकि नाउ इन दिस लास्ट सेमेस्टर आई हैव अराउंड 6 to 8 people with me जो कि बहुत अच्छे हैं। नॉट जस्ट मेरे पास 1-2 लोग ऐसे हैं, नहीं, मेरे पास अराउंड 6 से 8 लोग ऐसे हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो लाइक दे आर माई फैमिली। आई लव स्पेंडिंग माई टाइम विद देम। और अगर कोई भी तुम्हारी लाइफ में सांप जैसे दोस्त आ रहे हैं तो तुम विद टाइम उनको परख ही लोगे और अपने आप को खुद ही साइडलाइन कर लेना उनसे। क्योंकि यार देखो, मेंटल पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी और के चक्कर में अपना दिल मत दुखाओ, अपना मेंटल पीस मत खराब करो एंड एंजॉय करो मोमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपनी एल्डर सिस्टर से रिलेटेड अपना POV दीजिए। ओहो, मेरी बड़ी बहन, ओ माय गॉड, लाइक शी इज द बेस्ट भाई। आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग, शी इज द बेस्ट। मैंने जो अपनी बहन के लिए फील किया है एंड हाउ मच आई लव हर एंड हाउ मच आई केयर फॉर हर इज ऑल्सो बियॉन्ड माई वर्ड्स। मेरे बड़े से बड़े डिसीजन में मैं उसको कंसल्ट करती हूँ। इवन इफ आई एम पोस्टिंग समथिंग टुडे, मैं उसको बता के पोस्ट करती हूँ, उसको दिखा के पोस्ट करती हूँ। एंड ट्रस्ट मी गाइज, दिस डिसीजन ऑफ माई कि आई शुड स्टार्ट कंटेंट क्रिएशन इज ऑल्सो हर आइडिया। शी कन्विंस्ड द एंटायर फैमिली। मेरी फैमिली वालों को थोड़ी सी टेंशन हो रही थी कि पता नहीं पढ़ाई हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। लाइक शी वॉज द वन हु बिलीव्ड इन मी मोर देन मी एक्चुअली, ठीक है। मुझे भी अपने आप पे इतना ट्रस्ट नहीं था जितना उसको ट्रस्ट था कि हाँ मैं दोनों चीज़ बैलेंस करके चल पाऊंगी। सो आई जस्ट लव 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 हर, ठीक है। पहले हम बहुत लड़ते थे बट अब ऐसा फेज आया है कि लड़ाई होती ही नहीं है। लाइक अगर होती भी ना तो वही मेरे साइड से ही होती होगी कि मैं ही चिल्ला रही हूँ। बट शी हैज़ बिकम सो कामर, सो पीसफुल, सो मच मैच्योर कि यार वो अपने एज से ज़्यादा भी मैच्योरिटी वाले डिसीजंस ले सकती है। एंड समटाइम्स व्हाट हैपन कि अब वो बड़ी होती जा रही है तो वो मेरे सामने और बच्ची होती जा रही है कि हाँ यार ठीक है, वो दूसरों के सामने बहुत बोल्ड रहेगी लेकिन मेरे सामने एकदम छोटी सी बच्ची रहेगी कि मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। ऐसे टचवुड भगवान जी, आई एम जस्ट सो ब्लेस्ड टू हैव अ सिस्टर लाइक हर एंड हर जन्म में वैसे ही मिले भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? ओके, सो माई बिगेस्ट फियर, तो बहुत सारे फियर हैं भाई। ओके ठीक है, इफ आई हैव टू टेल ओनली वन देन आई गेस मेरा पहले ये था कि लूजिंग पीपल इज माई बिगेस्ट फियर एंड इट स्टिल इज, बट नाउ इट हैज कम टू द सेकंड पोजीशन बिकॉज माई फर्स्ट fear is that breaking someone's expectations, especially when it comes to your family members and your loved ones. If you are breaking their expectation is what makes me feel so afraid कि भाई नहीं, एक होता है कि हाँ यार ठीक है, this is all you have to do in your life, but at least don't break the trust, don't break the expectations of your loved ones. And this I have realized and learned in my previous year. Breaking the expectations and the trust of people is what makes me feel so afraid कि भाई ये तो नहीं करना चाहिए किसी का। Next question, कोई लड़की ढूंढ दो यार, आपके लिए लड़की। ओके ढूंढती हूँ, मैं तो तुमसे खुद ही कहती हूँ अप्रोच करो भाई, खुद से अप्रोच करो। देखो अब मैं क्या ही बोलूँ, मैं तो इन सब पे क्या ही ज्ञान दूँ, मैं क्या ही ज्ञान दूँ गाइस इन सब पे, ठीक है। अगर आपको कोई लड़की अच्छी लग रही है तो आपको खुद ही स्टेप लेना पड़ेगा, वो आपके पास चल के नहीं आएगी सर जी, आपके पास आपको उसके पास खुद जाना है, तो अप्रोच करो उसको, यही कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन थिंग दैट पीपल ऑलवेज मिसअंडरस्टैंड अबाउट यू? आई गेस आई हैव एक्नॉलेज्ड टू दिस क्वेश्चन सो मेनी टाइम्स इन फ्रंट ऑफ माई फ्रेंड्स कि भाई देखो, जब कोई मुझे इंसान जानता नहीं है, इफ दे डोंट नो मी एंड इफ दे हैव सीन मी फ्रॉम अ वेरी डिस्टेंट व्यू कि भाई मैं उसको जानती नहीं हूँ पर्सनली बट आई एम लुकिंग एट हर,
तो उनको लगेगा कि आई एम सच अ बैडी और एटीट्यूड वाली लड़की. पीपल हैव ऑलवेज कन्फ्रंटेड दिस टू मी कि व्हेन आई डिडंट नो यू आई थॉट यू आर अ बिच. मैं एटीट्यूड वाली नहीं हूँ गाइस, मेरे से बात करो, मैं बहुत स्वीट हूँ, ट्रस्ट मी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज योर फेवरेट फूड? एवरीथिंग इन फूड इज माई फेवरेट. लाइक मेरा फेवरेट थिंग ही फूड है भाई. मैं दुखी रहूंगी, मुझे कुछ अच्छा खाना है. मैं सैड रहूंगी, मुझे कुछ अच्छा खाना है. मेरे मूड स्विंग्स होंगे, मुझे कुछ अच्छा खाना है. मेरे साथ कुछ अच्छा हो गया तो मुझे कुछ अच्छा खाना है. अच्छा खाना एज अ थेरेपी यार, बस अच्छा खाना होना चाहिए. पहले मेरे को छोले भटूरे अभी भी बहुत पसंद है, ट्रस्ट मी, मेरे को बहुत पसंद है छोले भटूरे. बट दैट कंडीशन इज कि अब उसके अच्छे वाले होने भी चाहिए. ये नहीं कि कुछ भी दे दो तो फिर अच्छे पसंद है, ऐसे नहीं. अच्छे वाले छोले भटूरे पसंद है, चाउमीन बहुत पसंद है, पाव भाजी पसंद है, सब कुछ पसंद है यार. मुझे खाने का तुम जो दोगे ना वो मुझे पसंद है, सब कुछ पसंद है, सब कुछ. नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर फेल्ट लाइक क्विटिंग सोशल मीडिया? Okay, so this has a long story to tell by the way. As I already told you guys कि जब मैं यहाँ पे आई थी so I've become so much introvert and I used to have one Instagram account of mine जो कि 11th-12th में मैंने बनाया था and वही सेम अकाउंट लेकर मैं आई थी अपने फर्स्ट ईयर में. I don't know how I have become so much introverted and I love to enjoy my own company. I love to live in my own shell कि मैंने सोशल मीडिया को ही छोड़ दिया था. I deleted my Instagram account and everything and I went underground. Then sooner or later मैंने अपनी प्राइवेट ID इनफैक्ट इसी पिछले साल बनाई है. And now in this year I've decided to start something new and becoming the older version of mine which was so extrovert, which was so good. Next question, do you believe in love at first sight? Not really. I don't think so. There is such thing that can happen in this world कि love at first sight हो रहा है. हाँ, बहुतों को होता होगा, बहुतों ने किसी को देख के अच्छा लगा होगा, किसी को हाँ ये इंसान अच्छा है तो मे बी उसने दिन अप्रोच करके एंड विद टाइम उससे ज़्यादा प्यार और बढ़ाया होगा. बट इट इज़ नॉट कि तुमको एक बार किसी ने तुमको देख लिया और तुमको अचानक से प्यार हो गया एंड यू डोंट केयर अबाउट हिज और हर बिहेवियर और हिज और हर सेंस लाइक इंटेलिजेंस लाइक माइंडसेट. ऐसा कुछ नहीं होता है. विद टाइम व्हेन यू स्टार्टेड टू नो अ पर्सन देन उसकी बिहेवियर से, देन उसके नेचर से, देन उसके ह्यूमर एंड एवरीथिंग व्हाट यू कंसीडर एज गुड थिंग्स, देन मे बी तुमको बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए उससे, ठीक है. बट इट इज़ ऑल्सो द रिवर्स प्रोसेस एज वेल कि तुमको उससे हो सकता है प्यार कम भी हो जाए. सो आई डोंट बिलीव इन दिस लव एट फर्स्ट साइट काइंड ऑफ थिंग. ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानता अ क्यूटी और अ बैडी? तो आई गेस आई एम अ मिक्सचर ऑफ बोथ बट मोर क्यूटर वर्जन मे बी. I have never considered myself cute to be very honest. मैं अपने आपको क्यूट तो नहीं मानती हूँ कि मैं बहुत क्यूट हूँ क्योंकि nobody has ever told me this to be very honest कि मैं क्यूट हूँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, ठीक है. तो हाँ, मैं अच्छी हूँ, मैं प्रिटी हूँ, ये सब की तारीफ मिली है बट क्यूट आई डोंट थिंक सो. मैं क्यूट हूँ, ठीक है, और मैं बैडी भी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी बैडी हूँ कहीं की, ऐसी वाली भी नहीं हूँ. तो आई एम न्यूट्रल गाइज आई गेस. या नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल यू डू आफ्टर ग्रेजुएशन? तो अभी फ़िलहाल के लिए मेरा तो प्लान ये है कि मुझे MCA करना है. सो आई गेस मैं उसके लिए 1 साल का ड्रॉप लेके अपने MCA के लिए तैयारी करूँगी फॉर अ गुड कॉलेज ऑफ कोर्स एंड देन उसके बाद MCA करूँगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ योर मंथली मेकअप एक्सपेंस? सच बताना प्लीज़. ऐसा कुछ नहीं है यार, मैं बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा मेकअप पे अपने पैसे खर्च करती हूँ. हाँ, मैं करना चाहती हूँ बट खाने में ज़्यादा खर्च कर देती हूँ तो मेकअप के लिए बचते नहीं. देखो क्या होता है ना कि सब लोग की प्रायोरिटीज़ होती हैं, ठीक है. कुछ अपना पैसा खाने में लगाते हैं, कुछ अपना पैसा कपड़े में लगाते हैं, कुछ मेकअप में लगाते हैं. मेरे पास बहुत ऑप्शंस है लगाने को कि मुझे कपड़ों में भी लगाना चाहिए, मुझे मेकअप में भी लगाना चाहिए, मुझे स्किन केयर में भी लगाना चाहिए. बट मेरी बुद्धि इतनी वो रखी है कि मैं हर चीज़ खाने में लगा देती हूँ एंड खा के मोटी हो जाती हूँ. बस यही कर रही हूँ मैं, ठीक है. तो अगर मेकअप एक्सपेंस की बात करें तो सिंस मेरा मेकअप का स्टॉक अभी ही ख़त्म हुआ था तो मैंने उसको दोबारा मंगवाया है. तो उसके लिए मेरा मेकअप एक्सपेंस क्योंकि मैं एक बार में मंगवाई हूँ तो ऑफकोर्स ज़्यादा पड़ा, तो डोंट जज मी फॉर दिस. बट हाँ, कुछ ऐसे ही पड़ गया था मेरे को, 3K में भी. लेकिन डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट माई रेगुलर एक्सपेंस गाइज. 3K कौन लगाएगा हर महीना मेकअप में? नहीं, वो मेरा सारी चीज़ें एक साथ आउट ऑफ स्टॉक हो गई थी ना, इसलिए मैंने एक साथ मंगाया था. तो एक साथ मंगाने का नतीजा ये था.
ओके गाइज, सो आई नो दिस वीडियो हैज़ बिकम अ लिटिल लॉन्गर. मेरे पास अभी भी बहुत सारे कमेंट्स हैं, बट आई थिंक सो कि मैंने कहीं ना कहीं उन सारे कमेंट्स का आंसर अपने वीडियोस में दे ही दिया है किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में. सो आई डोंट थिंक सो कि आई नीड टू पुट अप दीज क्वेश्चंस अगैन. बट थैंक यू सो मच फॉर इवन आस्किंग आउट दीज क्वेश्चंस टू मी, बिकॉज मुझे तो लग रहा था कि मैं पोस्ट करूँगी और कोई क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बट इट वॉज नॉट लाइक दैट. Thank you everyone, and if you guys have been the part of this video till now, it truly means a lot to me. Also, if you like this video, please do like, share and subscribe to my channel. Give it a huge thumbs up. Comment down below कि अब आपको next कौन सी वीडियो देखनी पसंद है. So I will try my level best to make such videos like that. Until then, take care of yourself. Bye bye. Jai Hind.